ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ੍ਹ 4.5 ਜਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਰੀਫਿਕ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟੀਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਵਾਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕਮਰ ਆਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਮਰ ਆਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰ ਆਗਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪ ਪੁੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਪੈਲਸਟੀਨ ਨੇ, ਪੈਲਸਟੀਨ ਚੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੂਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ सर प्लीज? देखिए, ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट जो है सेटलर कॉलोनियलिज्म का है और ये जो शुरू हुआ है वो ऑटोमन एम्पायर का ये पूरा हिस्सा होता था। मिडिल ईस्ट पूरा उन्हीं के कंट्रोल में था और उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर पहली वर्ल्ड वॉर में हारा तो उसके बाद से ये एरिया अंग्रेजों के और फ्रेंच के कब्जे में आ गया और वहां पे उन्हीं ने छोटी छोटी वीक डिपेंडेंट स्टेट बना ली और पैलेस्टाइन जो था वो उसके ऊपर उसको लीग ऑफ नेशन जो बाद में गठन हुआ उसने अंग्रेजों को सौंपा कि आप इसका मैंडेट आपको मिलता है कि आप यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे और ड्यूली इलेक्टेड बॉडी को वहाँ पे गठन होगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने वहाँ पे, इंग्लैंड ने वहाँ पे फौरन ही बेलफोर डिक्लेरेशन आ गया। बेलफोर डिक्लेरेशन में ये था कि पैलेस्टाइन जो है ये जूइश होमलैंड है और यूरोप से बड़ी संख्या में यहूदी मूल के लोग पैलेस्टाइन आना शुरू हो गए। जब तक वो यहाँ पे आ रहे थे उससे पहले लगभग 96% के करीब अरब थे, जिसमें मुसलमान भी थे और क्रिश्चियन भी वहां पे रहते थे और ज्यूज बहुत थोड़ी सी संख्या थी उनकी। ज्यूज तो ज्यादातर यूरोप और दूसरे मुल्कों में फैले हुए थे।
और अरब देशों में भी थे, जहाँ पे वो आराम से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनकी समस्या यूरोप में थी। यूरोप में आए दिन उनके ऊपर प्रॉब्लम आती रहती थी, कन्फ्रंटेशन भी होता रहता था उनका। यहाँ पे यूरोप ने अपनी प्रॉब्लम डाइवर्ट करके यहाँ पे भेज दी, और फिर यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पलायन हुआ, आए लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद 1948 में पैलेस्टाइन का विभाजन यूनाइटेड नेशंस ने कर दिया। मैंडेट तो हुई नहीं, और इस पूरे पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो पीरियड था, इसमें अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में इजरायलियों को लाके वहां पे बसाया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा, पुलिस में जोड़ा, सेना में जुड़े, और इस तरह से धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रांग होते चले गए। और बाद में वो स्वयं तो अलग यूनिलैटरली विड्रॉ कर गए, वहां पे एक वैक्यूम हो गया, इजराइल ने कब्जा कर लिया। और इस पूरे पीरियड में काफी मैसेकर्स भी हुए पैलेस्टीनियंस के, बड़ी संख्या में पलायन हुआ वहां से निकल के। ये रिफ्यूजी वहां से तो गाजा स्ट्रिप में ही आ गए कुछ, और बड़ी संख्या में लोग जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जो चारों तरफ उसके देश हैं, वहां चले गए, और कुछ खाड़ी के देशों में, कुछ अलग अलग जगहों पे सेटल हो गए जाके। ये एक, फिर उसके बाद ये हुआ कि दूसरा लैंडमार्क था, मैं आई कट शॉर्ट। फिर ये हुआ कि 67 में एक दूसरी जंग हुई बड़ी, अरब इसराइली, जिसमें इसराइल ने पूरे पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया। जो इनको मिला था वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, और जेरूसलम के लिए तय हुआ था इंटरनेशनल सिटी बनेगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही इसराइल का गठन हुआ, इसराइल ने वेस्ट पार्ट ऑफ द जेरूसलम जो था उस पर कब्जा कर लिया। ये तय हुआ कि जो है ईस्ट जेरूसलम जो है, जहाँ पे मस्जिद अल अक्सा वगैरह है, ये ईस्ट जेरूसलम में है। ये पार्ट जो है हिस्टोरिक, जहाँ पे अरब रहते थे, अरब क्वार्टर्स हैं, अरब बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर वगैरह, ये फिलिस्तीनियों की का रहेगा। लेकिन इस सब पे उनका कब्जा हो गया। यही नहीं, बल्कि गोलान हाइट्स भी अभी उनके कब्जे में, जो सीरिया की है, उसके ऊपर भी उन्हीं ने कब्जा कर लिया। और थोड़ा सा एरिया बाद में उन्हीं ने लेबनान के कब्जे में पहले तो काफी किया था, साउथ लेबनान, फिर 82 के बाद में, और बाद में वहां से हिजबुल्लाह ने उनको भगा दिया। और लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह का मानना है कि थोड़ा सा शिबा फॉर्म का जो एरिया है वो उनके कब्जे में है। तो ये तब से डिमांड हो रही है कि भाई आप विड्रॉ कीजिए, यहाँ पे पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उसकी सब बड़ा कारण ये है कि इजराइल ने धीरे धीरे वहां पे सेटलमेंट बनाने शुरू किए, इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज में अपनी पॉपुलेशन को लाके शिफ्ट करना पड़ा, फिलिस्तीनियों को स्क्वीज करना शुरू किया। और जो कुछ हुआ वो सब हिस्ट्री है, लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरह से दमन वहां पे चल रहा था। हाल ही में हमने देखा कि कई एक बार बीच में ये तय हुआ 90s, अर्ली 90s में, कि भाई ओस्लो एकॉर्ड होगा, और टू नेशन स्टेट की थ्योरी आई कि उसमें एक तरफ पैलेस्टाइन स्टेट बनेगी, दूसरी तरफ यहूदियों की होगी स्टेट, और दोनों साइड बाय साइड रहेंगे पीसफुल्ली। अरफात ने कहा कि हाँ, हम डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बनाएंगे, जहां मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो ज्यूज इस तरफ हैं, हमारे अरब ज्यूज जो हैं, वो भी वहां रहेंगे। लेकिन ये सब हुआ नहीं, बहुत साल तक बातचीत चलती रही, और इनमें खत्म हो गया। इजराइल, अरफात भी सीन पे नहीं रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हम लोग सब जानते हैं बहुत उनको, क्योंकि उन्हीं ने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। इजराइल अपने फेवर में चाहता था एग्रीमेंट करना, इनफैक्ट वो कुछ देना ही नहीं चाहते थे। आज भी उनकी कोई नीयत वहां से विड्रॉ करने की नहीं है। तो ये सब चलता रहा। अब ये हाल के अंदर बराबर स्क्रीमिशेस हो रहे हैं, कभी अटैक हो रहा है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, रॉकेट भेजे जा रहे हैं लेकिन सर गाज़ा पैलेस्टीनियंस। पर, आई एम सॉरी सर मैंने आपको रोका, लेकिन आपने ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਦੀ? ਕੀ ਗਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਹਮਾਸ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਤਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। नहीं, पहले सब जगह पीएलओ स्ट्रांग थी। पीएलओ ने जब बातचीत की इजराइल के साथ, एक लंबे समय तक बातचीत की, और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। और अरफात की जो पॉपुलैरिटी थी, खास तौर से वो डिक्लाइन होने लगी। अरफात पर्सनली तो नहीं हुई उनकी डिक्लाइन, लेकिन पीएलओ क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाई। फिर दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा
कि ये वो पीरियड था 80s 19 का, जब इस्लामिक मूवमेंट पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैल रहे थे। उसका इम्पैक्ट वहां भी पड़ा कि भाई सेकुलर नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट का यहाँ पे गठन होगा, जो हमस उस वक्त सब। हमस को इजराइल ने बहुत सपोर्ट किया शुरू में। हमस को सपोर्ट करने का कारण ये था, वो इसलिए कर रहे थे कि ताकि पहले पीएलओ वीक हो जाए, डिवाइड हो जाए, और हुआ भी बहुत, जिसका फायदा इजराइल को बहुत साल तक हुआ, लेकिन अब महंगा पड़ रहा मतलब कि है। ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ, एक ही ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਲਓ ਨੂੰ नहीं पैदा नहीं की थी, बल्कि मदद की थी। कुछ ਸਪੋर्ਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। कुछ संस्था थे जूइश लंदन बेस्ड, जो इनको फंड कर रहे थे। हमस को पता भी नहीं था कहाँ से फंड आ रहा है। हमस से बाद में जब पूछा गया तो हमस ने कहा कि हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो अपनी संस्था बनानी थी। तो उन्हीं ने सोचा था कि पीएलओ वीक होगी। पीएलओ की क्योंकि रिकॉग्निशन पूरी दुनिया में था, और पीएलओ के कमजोर होने से पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਹੀ 911 ਨੂੰ ਇੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। हाँ, उसका कारण ये है कि ब्रिटिश अमेरिकन पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि लिबरल इस्लाम से वो डील नहीं करते। उन्हीं ने सऊदी अरेबिया में भी हमेशा को सपोर्ट किया, और डेमोक्रेसी को कभी प्रमोट नहीं किया पूरे अरब वर्ल्ड में। और लिबरल इस्लाम जो कि डेमोक्रेसी की बात करता था, सेकुलरिज्म की, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं मिला कभी भी अंग्रेजों से या अमेरिकनों से बाद में। और वो जो थे सऊदी अरेबिया भी जो प्रो अमेरिकन देश था है, उसको भी उन्हीं ने, क्योंकि वहां पे बहुत कट्टरपंथी वहाबी आइडियोलॉजी थी, उसी को वो सपोर्ट करते थे। वो चारों तरफ उसका वर्चस्व भी बढ़ा। एक जो अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट था, हमने देखा उसका धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, और इस्लामिक मूवमेंट का 70s ऑनवर्ड, ईरान के रेवोल्यूशन के बाद से लगातार बढ़ता चला। ਰਾਈਟ ਜੀ। ਸਰ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਮਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹਥਿਆਰ, ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਮੂਵ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ पहुंच रही हैं? देखिए, एज सच तो कोई वहां पे सपोर्ट दे नहीं सकता। छिप छिपा के थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वो भी मुश्किल होता है। इसलिए कि पिछले 10-15 साल से इस पूरे गाजा जो है, ये एक स्ट्रिप है, बहुत छोटी सी, 30 मील लंबी और 7-8 मील चौड़ी बस, जिसके अंदर लगभग 2.5 मिलियन लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। एक तरफ समुंदर है, एक तरफ इसके इजिप्ट का एक पार्ट है छोटा सा, बाकी इजराइल से जुड़ा हुआ है, इजराइल का बॉर्डर है। तो ये पार्ट जो है, इजराइल चारों तरफ से इजराइल ने इसको घेर रखा है, और इजिप्ट ने भी इसको बंद कर रखा है। इजिप्ट की नहीं बनती हमस के साथ, बातचीत जरूर करते रहते हैं वो लोग, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं है। और इजिप्ट पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका का समर्थक देश है, मित्र देश। तो ये इनको वेपन सिस्टम वगैरह तो बाहर से नहीं आता, इनके पास है भी नहीं बहुत अच्छे। रॉकेट टेक्नोलॉजी इनको मिली है, बहुत से लोगों का कहना है कि ईरान ने दी है, जिसको धीरे धीरे उन्हीं ने काफी इम्प्रूव कर लिया है। और ये बहुत अच्छे रॉकेट्स नहीं है कि आपको जैसे कि पीजीएम वगैरह होते हैं कि एक फिक्स जगह पे जाके गिरेगा, इसमें ये इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत से रॉकेट फेंक देते हैं, इसमें से ज्यादातर आयरन डोम गिरा देती है, 1-2 हिट कर जाते हैं टारगेट पे। ये इन्हीं ने स्वयं इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं और बढ़ा लिया है। ਰਾਈਟ। और ਸਰ ਯਹੀ ਸੇ ਸਵਾਲ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ
ਕਿ ਪੈਲੇਸਤੀਨ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਓਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ क्यों होया, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰग ਨੂੰ मैं क्वेश्चन कर रही हूँ सर। दो वजह थी। एक तो वो चाहते थे कि ये जो स्टेटस को है ये टूटना चाहिए, न पीस है न जिसमें वॉर है। चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां के ऊपर और हालात बहुत खराब है। एक बोरी सीमेंट के लिए भी लड़ाई होती है, मिलती नहीं कहीं से। अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए तो बनाना मुश्किल होता है। टनल वनल खोद के ये लिए आते हैं इजिप्ट से, इधर उधर से, वो फिर पकड़ ली जाती है, वो बंद होती है, फिर नई टनल खोदते हैं। इस तरह से काम बहुत दिनों से चला और उनके पास पैसा भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमी इतनी वीक है। समय उसका ये था कि उन्हीं ने सोचा इस वक्त दो चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर रहा था अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाने जा रहा था। ये खबरें बहुत आ रही थी। हालांकि ये ऐसी बात पूरी तरह से नहीं, सऊदी अरेबिया ने बड़ी सख्त शर्तें रखी थी। अगर वो शर्तें पूरी होंगी तो वो इजराइल से दोस्ती करेगा, जिसमें एक शर्त उनकी सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि पैलेस्टाइन स्टेट का, इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन स्टेट का गठन, जो कभी इजराइल नहीं मानता, ना अमेरिकन उस पर मानते। अब सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया कि वो मुझे नहीं लगता कि समझौता हो पाएगा, ये पीस डील इन दोनों के बीच में हो जाएगी। दूसरा ये कि लगातार मस्जिद अल अक्सा, जो कि तीसरी बहुत होली श्राइन है मुसलमानों का, सारे मुसलमानों का, जितने भी सेक्ट हैं सबका, वहां के ऊपर जिस तरीके से ये लोग इजरायली का जाना, जूता पहन के अंदर टहलना, मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको जूते से मारना, नमाज को भंग कर देना, फिर उसके अलावा थूकना और बदतमीजियां करना, ढकेलना, जो हरकतें कर रहे थे। फिर बड़ी हैवी पुलिस बंदोबस्त होना, वहां पे होना, आए दिन प्रोसेशन निकालना जूइश सेटलर्स का, और उनके पास तो बंदूक भी एक लटकी रहती है, और उस जाना, दुकानदारों को थ्रेट करना पुराने क्वार्टर में जहाँ पे उनके मार्केट वार्केट है, और हालात बहुत बिगड़ गए थे। और ये था कि इन्हीं ने सोचा कि अगर इस समय हम करते हैं तो फिलिस्तीनी भी लड़के बहुत नाराज हैं, वो जान तक देने पे तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको पूरी दुनिया के मुसलमानों की भी सपोर्ट मिलेगी। और काफी हद तक अब जो डिफेंसिव हो गए हैं, जो मित्र देश भी जो हैं इनके, इजराइल के, जिनकी के साथ दोस्ती कर रखी है, वो भी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है इस समय, इसलिए कि वहाँ की आम जनता जो है वो फिलिस्तीन के फेवर में है, और गवर्नमेंट जो है, देखिए अरब वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है 99% मैं तो कहूँगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं है वहाँ पे, या तो आर्मी बैक्ड रिजीम्स हैं या इस्लामिक रिजीम्स हैं, और सभी ज्यादातर जो है डिक्टेटोरियल रिजीम्स है, तानाशाह वहाँ पे बैठे हुए हैं, और पब्लिक ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती। मगर ये इस समय जो ये इशू था ये बहुत खतरनाक है, धर्म का मामला होता है, वो ज्यादा ज्वलंत हो जाता है, और ये समय देख के इन्हीं ने किया। फिर दूसरी लगता है बड़ी प्रिपरेशन से आए, वो छोटे छोटे क्या कहते हैं ग्लाइडर्स में बैठ के, तो देखने वाले सीन है, इन्हीं ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, मोटरसाइकिल फेंसिंग को काटा तोड़ा और अपना उसके अंदर घुस गए और भागते हुए गए। एक सबसे बड़ी बात ये कि साइकोलॉजिकल, जो पूरी दुनिया में ये था कि इजराइल की आर्मी, इसको कोई छू नहीं सकता, इसके अंदर घुस नहीं सकता, ये घुस गए वहां पे ये लोग अंदर, और काफी अंदर बहुत से छोटे छोटे टाउन्स हैं वहां पे, टाउनशिप्स हैं, उन पे कब्जा कर लिया। 400 इजरायली मर चुके हैं, अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आई है। कई सौ मिसिंग है। तो मतलब इतना बड़ा जोड़ तो कभी मतलब इन्हीं ने सोचा ही नहीं था। जो मिथ था इजरायली आर्मी का वो भी शैटर हो गया एकदम। हालांकि अब वेस्टर्न मीडिया उसको बनाने की कोशिश करेगी दोबारा से, हमेशा उनके साथ रहते हैं, मीडिया की उनको पूरी सपोर्ट रहती है, लेकिन फिलहाल तो उनका बहुत वो हो गया कि भाई ये कैसी आर्मी है जो है। और यही नहीं, कितने सोल्जर को भी उठा ले गए हैं, कितने लोग हैं,
उसके अंदर जो लड़कियां सोल्जर्स थी उनको भी ले गए हैं। और इन लोगों को इसलिए लेके गए हैं ताकि वो फ्यूचर में निगोशिएट करके जो हजारों लड़के जेल में हैं, बड़ी बड़ी जेल की कंडीशंस वहाँ बहुत खराब है, टॉर्चर भी बहुत होता है, उनको रिलीज करने के लिए। तो ये एक बार्गेनिंग चीज है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਾਲ ਲੈਬਨਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਲੇਟਲੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਸਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੀ निकलेगा सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जियोपॉलिटिकली? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि तालिबान हो या अलकायदा हो या दाइश हो, ये कभी फिलिस्तीन की बात नहीं करते और इनका कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन इतनी ज्यादा उनके फेवर में है मुस्लिम वर्ल्ड में, तो स्टेटमेंट दे देना और बात है। कभी भी जितनी भी कट्टरपंथी इस्लामिक संस्थाएं हैं, उन्हीं ने कभी भी पैलेस्टाइन को समर्थन नहीं दिया। दूसरी बात ये भी है कि ये बड़ा सीरियस मसला है जियोपॉलिटिकल, इसलिए कि अगर ये जंग बढ़ती है या ईरान के ऊपर अटैक होता है, जो कि इजराइल बार बार कह रहा है कि हम उसे वीपन बनाने नहीं देंगे, हालांकि ईरान बार बार डिनाई करता है, लेकिन उसका मानना ये है कि ये इजराइल का मानना ये है कि वीपन प्रोग्राम बना में काफी आगे बढ़ चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि वो जल्दी ही ईरान जो है वो 15 दिन के अंदर वीपन असेंबल कर सकने की क्षमता रखता है। इस तरह के स्टेटमेंट आए, तो उससे ये, और फिर उसके बाद साथ में ये भी हुआ कि अमेरिकन और इजरायली दोनों बराबर एक्सरसाइजेस कर रहे थे और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, दिखा रहे थे लोगों को कि किस तरीके से हम उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त कर सकते हैं। वो क्षमता भी डेवलप की वो एक्सरसाइजेस के माध्यम से। तो ये बातें लग रही थी कि ईरान पे अटैक हो सकता है कि जल्दी हो जाए, मगर अब अगर इस समय होता है तो फिर तो पूरा रीजन, ईरान ने साफ कहा है अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो वो ऑयल सप्लाई को डिसरप्ट कर देगा, या जो भी देश इजराइल को सपोर्ट करेगा उसको वो अपना एनिमी मान के उससे भी लड़ाई लड़ेंगे वहां पे भी। तो ये एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया के सामने है, जिसको हमास ने ये देख के किया कि अगर ऐसा होता है, तेल की कीमत ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ समय में $100 तक पहुंच सकता है। इकोनॉमीज जो है, यूरोप की इकोनॉमी तो बहुत कमजोर है पहले ही से ही, खुद अमेरिका की भी इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, वीक है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है अमेरिका के अंदर और यूरोप के बहुत से देशों में। फिर उसके बाद ये भी है कि लंबी यूक्रेन की जंग के चलते हुए जर्मनी तो ऑलरेडी रिसेशन में है की इकोनॉमी, और कम से कम कई 1 दर्जन से भी ज्यादा यूरोपियन देश जो हैं वो बिल्कुल कगार पे खड़े हैं रिसेशन के। तो इन हालात में फिलिस्तीनियों को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है इस समय सेटल करने पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ेगा और शायद ये होगा कि इजराइल को विड्रॉ करने पे मजबूर किया जा सके। हालांकि ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन यह है कि इजराइल पे प्रेशर तो जरूर पड़ेगा। सपोर्ट जरूर सबने कहा है और करेंगे भी। इजराइल उनका अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है उस रीजन में। वो अमेरिकन और पश्चिमी देशों के हित को वहां पे प्रोटेक्ट करता है और उनका हित बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑयल की सप्लाई बनी रहनी चाहिए लगातार, और फिर वो कट्टरपंथी तारकतों के भी खिलाफ बात करता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इन पूरे अरब देश की पर वो करता है। इजराइल के खिलाफ एक बहुत इम्पोर्टेंट मोहरा है जो अमेरिका के और इजराइल दोनों के खिलाफ है। तो इस वजह से अमेरिकन यूरोपियन उसको अबेंडन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि एक सख्त एक प्रेशर है यूरोप के ऊपर। तो ये समय उन्हीं ने सोचा, मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के ये अटैक उन्होंने किया है। उन्हें उम्मीद है कि हिजबुल्ला भी उनका साथ देगा, और हिजबुल्ला ने भी अभी आज कई रॉकेट लॉन्च किए इजराइल ने
मिलती है, हुँ, तो हुँ। एक नया बहुत फ्रंट खुलने को मिलता हुँ, हुँ। बहुत क्विकली जवाब देਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਹਮਾਸ, ਪੈਲਸਟੀਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ पैलेस्टीन नज़र आ रही है, गाज़ा च बैठे हमास नज़र आ रहे हैं। है। देखिए, अमेरिका के पास अथाह शक्ति, इज़राइल के पास अमेरिका की वजह से भी और वैसे भी बहुत अथाह शक्ति है। बेस्ट अमेरिकन फाइटर प्लेन्स उनके पास हैं। फिर उसके अलावा उनके पास वेपन सिस्टम बहुत अच्छा है। खुद उन्हीं ने भी जो डेवलप किए हैं बहुत अच्छे हैं। फिलिस्तीन के पास तो कुछ है ही नहीं। ये हुँ, हुँ। हैंडमेड रॉकेट हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये है कि लोगों को में लड़ने की क्षमता है जो अंदर घुस के लड़ रहे हैं। अभी भी लड़ाई अंदर चल रही है। जी। वो भी जानते हैं कि इस लड़ाई में इज़राइल जो है वो सारे एरिये को जितनी बिल्डिंगें हैं इम्पोर्टेंट वहाँ गाज़ा की उसको ध्वस्त कर देगा। उनके बहुत से लोगों को भी मारेगा, जो हो भी रहा है। आप देख रही हैं। मगर ये है कि पहले भी कई बार कर चुके हैं। हमने ये देखा है कि उनके बहुत से कमांडर्स मारे जा चुके हैं इससे पहले, उसके बाद नए लड़के खड़े हो जाते हैं, नए कमांडर बन जाते हैं, नई बिल्डिंगें वो लोग बना लेते हैं, काम करने लगते हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं। ये ज़रूर है कि इस लड़ाई ने पैलेस्टाइन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दोबारा से रखा है और एक मसले को बना के रखा है कि इसको सॉल्व अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सॉल्व करें, नहीं तो हुँ, हम पीस नहीं आने देंगे, नो वॉर नो पीस चलती रहेगी, जो पश्चिम इज़राइल ना तो इज़राइल के पक्ष में है और ना ही अमेरिका। राइट। सर ਸਮੇਂ को ध्यान में रखते हुए मैं ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਮਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੈਲੇਸਟੀਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਲੇਸਟੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ किवें डिकोड करोगे जी? देखिए, समय बदल गया है, वक़्त बदल गया है। नॉन अलाइनमेंट अब उतना इफ़ेक्टिव बॉडी नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि भारत में पहले जो थे वहाँ पे लिबरल सेकुलर बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की और वो हमेशा से एंटी इम्पीरियलिस्ट स्टैंड लेती थीं और बोलती भी थीं। लेकिन ये है कि नरसिम्हा राव के समय से इज़राइल की तरफ धीरे-धीरे भारत का रुझान होने लगा था। और नरसिम्हा राव ने सबसे पहले इज़राइल से अपने रिश्ते बनाए। फिर उसके बाद हमारा रुझान अमेरिका की तरफ हुआ। जब अमेरिका से अच्छे रिश्ते कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, सोवियत यूनियन टूटने के बाद, हम लोगों ने अमेरिका से रिश्ते बनाने की कोशिश की और उसमें इज़राइल ने हमारी मदद की। इन लोगों ने इज़राइल क्योंकि इज़राइल के लिए इंडिया बड़ा देश है, बहुत इम्पोर्टेंट देश है, बड़ा मार्केट भी है, वो देख रहा था। उसने मदद की इज़राइली लॉबी ने वहाँ पे और फिर उसके बाद हालाँकि इंडिया ने मस्ट हैव पेड लॉट ऑफ मनी टू दीज़ लॉबीज़। फिर उसके बाद अ, जैसे-जैसे अ, बीजेपी की सरकारें बन बीजेपी पार्टी जो थी, ये हमेशा से अ, इज़राइल के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात करती थी। ये हमेशा से पहले हिंदू महासभा थी, फिर उसके बाद गांधी जी के मर्डर के बाद जब हिंदू महासभा खत्म हो गई, तो बाद में जनसंघ का गठन हुआ। जनसंघ भी हमेशा बात करती थी प्रो इज़राइल और अमेरिका से अच्छे संबंध और वेस्टर्न देशों से। फिर उसके बाद बीजेपी का जब गठन हुआ, तो बीजेपी ने भी वही लाइन धीरे-धीरे आगे चलाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वयं बहुत अच्छे रिश्ते हैं अ, इज़राइल और इज़राइली गवर्नमेंट और उनके प्रधानमंत्री खास तौर से नेतन्याहू के साथ। और वो एक चीज़ और भी है कि भारत जो है वो अ,
PLO यानी पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो इस समय है, उसको वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल मानता है। उससे भारत के संबंध बने हुए हैं आज भी। और हमस या इस तरह की इस्लामिक जिहाद जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको वो नहीं मानता। और वो उनके इसीलिए उन्हीं ने उसको टेररिस्ट कहा, और क्योंकि परिभाषा अमेरिकन भी टेररिस्ट कहते हैं। और फिर उसके अलावा ये था कि वो एक टेररिस्ट अटैक का नाम दिया वो, और उन्हीं ने पूरी अपनी सहानुभूति इजराइल के साथ की। दूसरी तरफ इंडिया का ये भी मानना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की इंडिया बात करता है, उसमें अभी बदलाव नहीं, क्योंकि अमेरिकन और यूरोप का बात करते हैं, कोई उस पर जोर नहीं देता कि आप उसके ऊपर इसराइल के विड्रॉल पे, हम न तो अमेरिकन न यूरोपियन न कोई दूसरा देश भी जो उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना पाता कि वहां से विड्रॉ करे। लेकिन ये है कि जो हमारा इन प्रिंसिपल स्टैंड है वो ये। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।